ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਿਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ O ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ A ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਆਊਟਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੁਦ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਲੋ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਪੀਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਸਟੈਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਮਾਲ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਮਾਲ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ FE ਲਿਖਤਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੁਦ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੁਝ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਅ ਚਾਰਜ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ? ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ in bringing the test charge from infinity to that point। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, FE ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਊ ਨੋਟ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਊ ਨੋਟ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਦਿਸ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅ ਫੋਰਸ which is FE electrostatic force। this force is FE electrostatic force is Q naught into E। ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆ ਚਾਰਜ ਹੈ Q naught ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਕੀ ਹੈ? FO, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰੇ।
ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ। ठीक है, दोनों का मैगनीट्यूड इक्वल है बट डायरैक्शन की होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो असी इत्थे नैगेटिव साइन लगाता। हुण जो असी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उस एक्सटर्नल फोर्स नाल सपोज आ जो टेस्ट चार्ज है मूव करना शुरू किया, जो ये मूव करना शुरू किया ए पॉइंट तो मूव करके इत्थे पहुंच गया मान लो बी पॉइंट उत्ते। ठीक है, कितना डिस्टेंस मूव किया, इत्थों तो इत्थों तक का डिस्टेंस असी लै लैंदे आ आर। ए तो बी तक के रीजन असी मान लें कि स्मॉल स्टैप्स विच मूव किया, तो जो डिस्टेंस है स्मॉल डिस्टेंस की लै लिया डी आर, टोटल डिस्टेंस साडे कोल की है आर। ठीक है जी, जेकर टेस्ट चार्ज मूव करूगा तो वर्क डन होगा, तो असी वर्क डन नूं कितना रिप्रजेंट करते हैं डबल्यू ए बी। ठीक है, तो किहदे करके हो रहा है, किस फोर्स करके हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स करके, एफ ओ वाली फोर्स करके जिहड़ी कि एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो असी वर्क डन की डेफिनेशन पढ़ी सी फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। हुण इत्थे फोर्स किहड़ी आ एफ ओ डॉट प्रोडक्ट हुंदी है किहदे नाल डिसप्लेसमेंट नाल, डिसप्लेस कितना होया डी आर वैक्टर, जदों डॉट प्रोडक्ट होएगी तो वैक्टर फॉर्म होएगी। ठीक है, स्मॉल स्टैप्स विच कढ रहे हैं तो असी इत्थे टोटल वर्क डन लिखिया डबल्यू ए बी। टोटल वर्क डन की है इंटीग्रेशन, कित्थों तो कित्थों तक दी इंटीग्रेशन, ए तो शुरू होया बी तक पहुंचा, ए तो बी तक दी इंटीग्रेशन, वर्क डन ए तो बी तक गया, इंटीग्रेशन कित्थों तो कित्थों तक हुई ए तो बी तक दी। किहदे करके वर्क डन की डेफिनेशन की है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिसप्लेसमेंट। ठीक है, एफ डॉट डी एस लिख देंगे सी, डी एस किसी साडी डिसप्लेसमेंट है, इत्थे डिसप्लेसमेंट की है डी आर। ठीक है, हुण साडे कोल एफ ओ किहदे इक्वल आ नैगेटिव ऑफ एफ ई, इत्थे असीं पुट करांगे नैगेटिव ऑफ एफ ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। ठीक है जी, नैगेटिव इंटीग्रेशन तो बाहर साडे कोल की आ गया ए तो बी एफ ई डॉट डी आर। हुण जो आ ए तो बी एज इट इज लिखता, एफ ई की वैल्यू कितनी है क्यू नॉट इंटू ई, इत्थे पुट करांगे क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। इत्थों अगे क्या आएगा, क्यू नॉट की है टेस्ट चार्ज की वैल्यू फिक्सड है, इंटीग्रेशन तो बाहर इंटीग्रेशन ए तो बी ई डॉट डी आर, वर्क डन ए तो बी एज इट इज। ठीक है, हुण जो वर्क डन है ए तो बी असी पिछली क्लास पढ़ चुके हैं +1 दे विच, किहदे इक्वल हुंदा द डिफरेंस इन दी पोटेंशियल एनर्जी। यू असी पोटेंशियल एनर्जी नाल रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों पॉइंट्स विच ए तो बी तक मूव किया, पोटेंशियल एनर्जी दे विच कितना डिफरेंस है, बी पॉइंट विच कितना, फाइनल है, ये फाइनल पोजीशन बी है, इनीशियल की है ए, तो साडे कोल वर्क डन डबल्यू ए बी किहदे इक्वल हुंदा यू बी माइनस यू ए। इत्थे यू बी की आ पोटेंशियल एनर्जी एट बी एंड यू ए की है पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ठीक है, तो असीं इत्थे रिप्रेजेंट की कर देंगे यू बी माइनस यू ए। हुण साडे कोल डबल्यू ए बी किहदे इक्वल हो गया यू बी माइनस यू ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू नॉट ए तो बी ई डॉट डी आर। नैक्सट अगर असी फाइंड आउट करना होवे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं सीगा। कदों तक पॉसिबल नहीं सी, जदों तक असी पोटेंशियल एनर्जी नूं डिफाइन नहीं कर लेंदे। ठीक है, हुण इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट फाइंड आउट करना, तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट नूं फाइंड आउट करने लई असीं मान लैंदे आ कि जो आ ए पॉइंट है, ठीक है, ए की है साडे कोल इनफिनिटी ते है, मीनस बहुत ज़्यादा दूर है, टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से जिथों असीं चक के इनू इस बी पॉइंट ते लैके आए हैं। ठीक है, तो असीं की मान लैंदे आ कि जिहड़ा टेस्ट चार्ज है वो की है इनफिनिटी ते है, मीनस ए की होगी साडी इनफिनिटी। तो जेकर ए पॉइंट इनफिनिटी ते आ तो फिर साडे कोल जो फोर्स सीगी वो किहदे विच हुंदी सीगी प्लस क्यू चार्ज ते क्यू नॉट चार्ज विच। ठीक है, हुण जेकर साडे कोल जो डिस्टेंस आहा ये इनफिनिटी हो गया,
ठीक है। जे डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाओ साडे कोल फोर्स का की फॉर्मूला हुंदा सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच डिस्टेंस डिस्टेंस कितना इन्फिनिटी दा स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारा कुछ सॉल्व करेंगे। नीचे की है इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी कितना हुंदा 0, तो फिर साडे कोल कोई भी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं अप्लाई होएगी। अगर ए पॉइंट इन्फिनिटी है तो कोई इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं अप्लाई होएगी, ते जे इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नहीं तो फिर इलैक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितनी होएगी 0। तो साडे कोल रिलेशन की बनेगा W ए दी जगह ते की आ जाएगा इन्फिनिटी, B इज इक्वल्स टू यू बी माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए तो बी ई डॉट डी आर। ठीक है, हुन यू इन्फिनिटी कितनी है 0, यू बी माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू नॉट ए तो बी ई डॉट डी आर किया गया W इन्फिनिटी B। तो इत्थों साडे कोल की आ गया कि वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट द पॉइंट B इन द इलैक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन किदे इक्वल आया पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B दे इक्वल। इस टर्म नूं असीं की रीड करांगे सिंगल लाइन मतलब हुंदा लाइन इंट्रैगुलर, इहदा मतलब हुंदा लाइन इंट्रैगुलर इज नोन एज लाइन इंट्रैगुलर ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द पॉइंट A टू पॉइंट B। नैक्सट आपां हुण की देखिया सी इहदे विच कि जो इलैक्ट्रिक फील्ड है जो वर्क डन कैलकुलेट करदे सी, वो की सीगा डिपेंड करता सीगा कि इनिशियल कित्थे आ, मीनस ए पॉइंट इत्थे सही देखिया सीगा कि ए पॉइंट ते आ या बी पॉइंट ते आ। ठीक है, ये तो नहीं देखा कि असीं किस तरह लैके गए सी, चाहे इदां लै जाइए चाहे इदां लै जाइए, किहड़े मर्जी राह नूं फॉलो करके लै जाइए, सीधा चले जाइए चाहे किसी भी जिग-जैग रस्ते नूं फॉलो करके चले जाइए, कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ की चीज़ इंपॉर्टेंट आ कि किहड़ा इनिशियल पॉइंट आ किहड़ी फाइनल पॉइंट आ, मीनस कित्थों शुरू किया कित्थे पहुंचे। ठीक है, तो किहदे ते डिपेंड करता सिर्फ इनिशियल पोजीशन ते फाइनल पोजीशन ते, इस ते नहीं डिपेंड करता कि किहड़ा रस्ता चूज किया। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो ये सारिया टर्म्स की आ कंजरवेटिव। इत्थे आपां की पढ़िया सीगा पहले फोर्स पढ़ी है, उहदे ते इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुंदा, तो उहदे ते ही हुण असीं पोटेंशियल पढ़ांगे। तो सारा कुछ की आ कंजरवेटिव आ, जो इलैक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़दे कंजरवेटिव आ, सिर्फ इनिशियल ते फाइनल पोजीशन ते डिपेंड करदी आ, पाथ फॉलो ते नहीं डिपेंड करदी। नैक्सट है जो लॉ ऑफ कंजरवेशन दी प्रॉपर्टी है कि जो वर्क डन होगा किसी भी कंजरवेटिव फोर्स दे लई वो की होगा क्लोज्ड पाथ विच 0 होगा। कोई भी क्लोज्ड पाथ लवांगे तो उहदे लई वर्क डन की होगा 0 होगा। किद्दां ए तो बी तक गए, कोई भी पाथ फॉलो किया, ठीक है, वापस बी तो ए तक आए। इनिशियली असीं कित्थे सीगे ए ते सीगे, इनिशियल पोजीशन साडी की है ए। ठीक है, फाइनली भी साडे कोल की होया ए तो बी तक गए, बी तो वापस ए ते आ गए, मीनस सर्कुलर पाथ हो गया। तो फाइनल पोजीशन भी साडे कोल ए आ, तो साडे कोल की होगा वर्क डन 0, क्योंकि इनिशियल ते फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है, तो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द चार्ज इन क्लोज्ड पाथ इज 0। तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट नूं असीं किद्दां डिफाइन कर सकते हैं। जदों असीं इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीता सीगा, जो ए पॉइंट्स उन्हें इन्फिनिटी मान लिया सीगा, तो साडे कोल सिर्फ बी पॉइंट ते जो पोटेंशियल आ गया सीगा, पोटेंशियल एनर्जी आई सी। ठीक है, तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट नूं असीं किद्दां डिफाइन करांगे, अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, केड़ा पॉइंट, पॉइंट बी। ठीक है, अगेंस्ट द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इररिस्पैक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड। कीते पाथ ते नहीं डिपेंड करती, ये जो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑपोजिट डायरैक्शन च लग रही सी। आपां इत्थे पढ़ चुके सीगे कि जो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस डायरैक्शन च अप्लाई होनी है, पर जो असी इनू चार्ज नू चक के इधर लैके गए असी ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच फोर्स लगाई, जिन्हों असी एक्सटर्नल फोर्स बोल दिता सी।
जो नैक्सट डेफिनेशन है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो की है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ पढ़िया W इनफिनिटी तो BU B ਦੇ इक्वल इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट इन E डॉट DR। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ UB डिवाइड बाय क्यू नॉट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंट्रैगुलर ऑफ E डॉट DR। तो की है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की है एक फिजिकल क्वांटिटी आ जिहड़ी सानू की दसदी है कि कितना चार्ज फ्लो करना। इनू समझण दे लई असी देख लैंदे आ कि एक सिलेंड्रिकल ट्रांसपेरेंट टैंक लै लिया, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ए ਲੈਵਲ मतलब वाटर ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਅਪ ਆ, ਇੱਥੇ वाटर ਦਾ ਲੈਵਲ B ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪਿੰਗ ਕਾਰਕ ਲਗਾਤੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ A ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, B ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਈਏ मतलब ਚੱਕ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਟਰ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ? A ਤੋਂ B ਵਾਲੀ डायरेक्शन 'ਚ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। A ਤੋਂ B वाली डायरेक्शन 'ਚ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ B वाली साइड ਤੇ वाटर ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਆ, ਚਾਹੇ A वाली साइड ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ, B वाली साइड ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਟਰ ਦਾ ਲੈਵਲ B वाली साइड ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ? A ਤੋਂ B वाली डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ कि जो पानी ट्रैवल करता पिया है, वाटर ट्रैवल करता है इधर तो इस डायरेक्शन दे विच, ये किहदे ते डिपेंड करता पिया है कि दोनों का लैवल कितना है वाटर का, ठीक है। इस ते नहीं डिपेंड करता कि ये वाली साइड ते कितना पानी है, इधर वाले टैंक ज़्यादा पानी है या घट पानी है, इस ते नहीं डिपेंड करता पिया। किस ते डिपेंड करता पिया है कि कितना ज़्यादा लैवल आ, मतलब डिपेंड करता ऑन दी लैवल ऑफ वाटर। सपोज क्या सैकेंड एग्जाम्पल दे विच असीं दो आयरन दे बॉक्स ले लिया, A बॉक्स है B बॉक्स है। A बॉक्स की है वड्डा है, ठीक है। असीं इहनूं हीट दे रहे हैं, दोनों नूं हीट दे रहे हैं। ये वाली हीट दित्ती बॉक्स नूं, जिन्नी इहनूं हीट देवांगे वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सैकेंड वाले बॉक्स नूं हीट दे, ठीक है। सपोज टू बी के फर्स्ट बॉक्स नूं असीं H1 हीट देती, जो आ वाला बॉक्स है B बॉक्स इन्हों सी H2 हीट देती। H1 बॉक्स है मतलब फर्स्ट वाले बॉक्स में ज़्यादा हीट देती, H1 इज ग्रेटर देन H2। थोड़े टाइम बाद असी की नोटिस करांगे कि जो टैंपरेचर है इस बॉक्स का वो की है घट हो जाऊगा एज कंपेयर टू दिस बॉक्स। मतलब यदा टैंपरेचर असी T1 लै लैंदे आ, ये वाले बॉक्स का टैंपरेचर असी T2 लै लैंदे आ। तो असी की देखांगे कि सैकेंड वाले बॉक्स का जो टैंपरेचर है वो ज़्यादा है। हुण जेकर दोनों बॉक्सिस नूं इकट्ठा करके रख दिए, मीनस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट विच जोड़ के रख दिए, तो की होगा कि आ जिहड़ा सैकेंड वाला बॉक्स है जिहदा टैंपरेचर ज़्यादा है वो की करूगा हीट ट्रांसफर कर दूगा टू दिस बॉक्स, ठीक है। कदों तक ट्रांसफर करूगा हीट? जदों तक दोनों का लैवल इक्वल नहीं आ जाता। तो इत्थे ये भी किहदे ते डिपेंड करती पई आ हीट ट्रांसफर। हीट कितनी है दोनों नूं दित्ती इस ते नहीं, बट किहदे ते डिपेंड करती है दोनों का टैंपरेचर लैवल कितना है। सेम चीज़ ही इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दे विच आ। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ही डिसाइड करता कि चार्ज ने किस डायरेक्शन दे विच फ्लो करना। इलैक्ट्रिसिटी दे विच जो करंट हुंदा चार्ज दे फ्लो करके हुंदा, चार्ज किस डायरेक्शन तो किस डायरेक्शन दे विच फ्लो करेगा, ठीक है। वो कौन डिसाइड करता? इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। हुण जिहड़ा वड्डा वाला स्पीयर है इहदा चार्ज मान लैंदे आ कैपिटल क्या हुआ, A स्पीयर ले लिया, अगला B स्पीयर ले लिया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਸਮॉल क्यू, कैपिटल क्यू की है ज़्यादा है स्मॉल क्यू नालों, बट ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ जो पोटेंशियल आ वो की है साडे कोल VB, ठीक है। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ जो पोटेंशियल आ वो की है VA। पोटेंशियल ਨੂੰ ਅਸੀਂ V ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो पोटेंशियल आ VB वो ज़्यादा है VA नालों, ठीक है। हुण जिहदा पोटेंशियल ज़्यादा है वो की है VB, तो जो चार्ज फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन की होएगी VB टू VA, मीनस B वाले चार्ज तो A वाले चार्ज वाल फ्लो करेगा। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता। मान लेने कि B पॉइंट उत्ते जो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ वो कितनी आ U। तो साडा इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिन्हों असीं V नाल रिप्रेजेंट करते हैं की होएगा U डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज Q। इत्थे साडे कोल चार्ज की असीं लै लिया Q, ठीक है। जे असीं इत्थे चार्ज Q नॉट लवांगे तो इत्थे भी की आ जाएगा Q नॉट।
ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੀ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਨੋਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, B ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਇਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ, U ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਕਿਊ ਨੋਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ B E ਡॉट dr। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ U ਬਾਈ ਕਿਊ ਨੋਟ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਕਿਊ ਨੋਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ B E ਡॉट dr डिवाइड बाय दिस क्यू नॉट नाल क्यू नॉट कैंसल की रह गया, नैगेटिव ऑफ इनफिनिटी टू पॉइंट B E डॉट dr। तो साडे कोल जो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है वो की आ गया, नैगेटिव ऑफ लाइन इंट्रैगुलर ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट वन पॉइंट B। जो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है एक सिंबल की रिप्रेजेंट करता, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। एक ही डॉट प्रोडक्ट आई है, डॉट प्रोडक्ट की हुंदी है, स्केलर प्रोडक्ट हुंदी है, तो फिर जो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है की है साडे कोल स्केलर क्वांटिटी है। नैक्सट असीं देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल असीं की पढ़िया सीगा, U बाय क्यू नॉट इज इक्वल्स टू वर्क डन, मीनस वर्क डन बाय चार्ज। एक आ पढ़िया सी असी, एक पढ़िया सीगा हाँ U बाय क्यू नॉट, ठीक है। हुण वर्क डन बाय चार्ज तो की आ जाएगा, वर्क डन दा डायमेंशन फॉर्मूला की है, चार्ज दा की है, वर्क डन दा की हुंदा mL2T माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाय चार्ज। चार्ज की सीगा AT, आपां पिछली वीडियोज़ विच देखिया है, चार्ज की हुंदा AT, तो जदों कंबाइन किया की बन गया mL2T, एक नीचे आ, दो माइनस दो ऊपर आ, ये भी माइनस दे ऊपर बन जो जाके -3, क्योंकि T ऊपर -2 आ, नीचे की है T1, ऊपर जाएगी तो -3 बन जाएगी इंटू A -1। एक ही आ गया साढ़े कोल डायमेंशनल फॉर्मूला, और सिंबल असीं कितना रिप्रेजेंट करते हैं, V नाल, और यूनिट की हुंदी है वोल्ट। V इज इक्वल्स टू U बाय क्यू नॉट है, V की है साढ़े कोल वोल्ट, ठीक है, और जो U है या जो इत्थे W है वर्क डन दे यूनिट की हुंदी है जाउल, ते चार्ज दे कूलम, तो साढ़े कोल की आ गया वोल्ट इज इक्वल्स टू जाउल पर कूलम, ठीक है। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल नूं असीं 1 वोल्ट कदों कवांगे, जदों साढ़े कोल वर्क डन की होगा 1 जाउल, वर्क डन किया जाऊगा यूनिट टेस्ट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज नूं मूव करन दे लई। तो डेफिनेशन की होगी, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलैक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट इफ 1 joule ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण नैक्सट है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, की है इहदे विच स्टैट वोल्ट, CGS यूनिट की है स्टैट वोल्ट, ते एक स्टैट वोल्ट CGS इत्थे SI यूनिट विच जाउल है वर्क दे यूनिट, CGS विच किने हुंदे आ अर्ग, ठीक है, ते चार्ज की है कूलम, ठीक है। चार्ज दे यूनिट की हुंदे आ स्टैट कूलम। 1 स्टैट वोल्ट किदे इक्वल होएगा, 1 अर्ग पर यूनिट 1 स्टैट कूलम। द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलैक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड 1 स्टैट वोल्ट इफ 1 अर्ग वर्क इज डन इन मूविंग 1 स्टैट कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलैक्ट्रिक फील्ड। नैक्सट है कि वोल्ट ते स्टैट वोल्ट विच की रिलेशन है। 1 वोल्ट साडे कोल किहदे बराबर हुंदा, 1 जाउल पर कूलम, ते 1 जाउल नूं हुण असीं अर्ग विच चेंज करना ते कूलम नूं स्टैट कूलम दे विच, ते सानूं पता है कि 1 जाउल किहदे बराबर हुंदा 10⁻⁷ अर्ग, ते 1 कूलम किहदे बराबर हुंदा 3 × 10⁹ ESU। ESU की हुंदा इलैक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिन्हों की कह दिंदे आ स्टैट कूलम, ठीक है। इत्थे पुट करांगे 10⁻⁷ अर्ग, नीचे 3 × 10⁹ ESU यानी इलैक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। की बन जाएगा इन्हें सॉल्व करके 3 एज इट इज × 10⁻⁷,
बेस सेम है, पावर्स की होंगी सबट्रैक्ट 1/3 एज इट इज आ गया, 7 - 9 -2 और जो इन सॉल्व करांगे की आ जाएगा 1/300। अगर असं नीचे लिखांगे 10⁻² आ जाएगा, की बनेगा 1/3 × 10⁻², 1/300। 1 वोल्ट किहदे बराबर है 1/300 स्टैट वोल्ट दे बराबर।